آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں فضل بخشا، ہمیں زندگی بخشی، ہمیں سانس بخشے اور یہ مبارک دن دیکھنے کا موقع دیا اور صحت و سلامتی بھی بخشی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہیں۔ اور میں نے ہمیشہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو کرسمس کی خوشیاں ہم منا رہے ہیں، پھر دہراتا ہوں تاکہ سننے والے جو ہیں وہ کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں اور پھر کچھ لوگ مغرور نہ ہوں۔ دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کی خوشیاں منانا، اس کی ویلیو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ اس کی ویلیو سیم ہے، چاہے گلی میں، محلے میں، چھت پر، چاہے PC ہوٹل میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوشیاں کس کی منائی جا رہی ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کی۔ وہ چرنی میں آ گیا تو چرنی کی شان بڑھ گئی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی گلیوں میں، محلوں میں، چھتوں پر، بازاروں میں، PC میں بھی اوکے، جس طرح خدا فضل دے۔ ایک تو ہمیں مغرور نہیں ہونا اور دوسرا احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کا جشن منا رہے ہیں۔ جب وہ ہمارے درمیان آتا ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اور ویلیو اس لیے ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایمانویل شہزادہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس وقت ہم بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ کلام مجسم ہوا، یعنی کلام نے، جو خدا کا کلمہ ہے، اس نے جسم اختیار کیا۔ خدا کا اکلوتا بیٹا جو خدا کا کلمہ ہے، اس نے جسم اختیار کیا۔ جسم میں وہ ظاہر ہوا ہے، وہ ازلی کلمہ، یہ یاد رکھیں۔ لکھا ہے اسی باب میں پہلی آیات جب پڑھتے ہیں، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے اور کلام ہی، وہ ازل سے ہے، ازلی کلمہ ہے، کلام ہے، اور اس کے وسیلہ سے ساری کائنات جو ہے وہ خلق کی گئی ہے۔ اور پھر یہ جو خدا کا پاک کلام جو مجسم ہوا ہے، وہ حال میں بھی اس کی قدرت کا مظاہرہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کی قدرت سے ساری چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ سنبھالتا ہے۔ اور اس نے ہمیں بھی آج تک کیا کیا ہے؟ سنبھالا ہے۔ اور ساری کائنات کو کیا کیا ہے؟ سنبھالا ہوا ہے۔ اور پھر یہ ازلی بھی خدا کا کلمہ ہے اور مجسم ہوا، اور حال میں بھی اس کی قدرت وہی ہے، اور پھر آئندہ جہاں میں بھی اس کی قدرت وہی ہے۔ مجھے کسی اسٹوڈنٹ نے سیمنری میں سوال کیا کہ لکھا ہے کہ اس کا کلام ابد تک قائم رہے گا، تو جب خدا یسوع مسیح آئے گا تو یہ جو کلام ہے یہ ہوگا؟ میں نے کہا ہوگا۔ میں یہ کلام کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ خداوند یسوع مسیح خود کلام ہے،
اور خدا کا کلمہ ہے. یہ زندہ کلام تو یہاں ہم پڑھتے ہیں، اس کی مبارک باتیں ہیں اور یہ ایکٹیو ہوتی ہیں. وہ خود خدا کا کلام ہے اور یسوع مسیح ابدی بادشاہ ہے اور ابدی کلام ہے. نہ صرف ازل سے ہے، نہ صرف حال میں ہے، بلکہ وہ ابد تک قائم رہے گا. وہ خود کلمہ ہے، وہ خود کلام ہے. اس نے جو کچھ کہا ہو جا، وہ ہو گیا. اور آج بھی جو کچھ کہتا ہے ہو جا، وہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے. تو یہ خدا کا جو کلام ہے مجسم ہوا ہے. یہ یاد رکھیں، ازلی بھی ہے اور حال میں بھی وہی قدرت ہے اور یہ ابدی کلام بھی ہے. ہاللیلویہ. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ آج زیادہ لمبا واعظ نہیں میں کرتا، کہ کیوں جسم اختیار کیا کلام نے. وہ موجود پہلے ہی سے ہے، صرف جسم اختیار کیا ہے. کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں پہلا تیموتھیوس کا خط 3 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے. دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی وہ بھید کیا ہے؟ وہ جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راستباز ٹھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا اور غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی اور دنیا میں اس پر ایمان لائے اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا. یہ بہت بڑا کیا ہے؟ بھید ہے. جسم میں آنا خداوند کے اکلوتے بیٹے کا، جو خدا کا کلمہ ہے، جسم اختیار کرنا، یہ بہت بڑا، بائبل مقدس میں لکھا ہے، ایک بڑا بھید ہے. اور اس کی 2-3 باتیں بتاتا ہوں، زیادہ نہیں. اس لیے جسم لینا ضرور تھا، انسانی جامہ پہننا ضرور تھا، تاکہ خدا انسان سے رفاقت رکھ سکے اور ملاقات کر سکے اور گفتگو کر سکے. اگر خدا کا اکلوتا بیٹا جسم میں ظاہر نہ ہوتا، انسانی جسم میں ظاہر نہ ہوتا، کسی جانور کی صورت میں خدا آ جاتا، تو کیا رفاقت ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی ہے. اگر وہ ہاتھی بن کے یہ ہمارا گاڈ ہے، تو پھر آپ اس سے رفاقت رکھیں گے؟ ہاتھی بولتا ہے آپ کے ساتھ، ڈر جائیں گے کہ نہیں؟ اگر شیر کی شکل میں آ جاتا تو کیا آپ اس سے رفاقت رکھتے؟ اس کی باتیں سنتے؟ نو، آپ تو بھاگ جائیں گے، ایک دم بھاگ جائیں گے. اس لیے ہمارا خداوند یسوع مسیح کسی جانور کی صورت میں نہیں آیا، کسی ڈراؤنی صورت میں نہیں آیا. وہ ہمیں ملنے کے لیے انسان بن گیا. وہ خدا تھا، وہ پہلے ہی سے موجود تھا، خدا کا کلمہ تھا، لیکن اس نے جسم اختیار کیا تاکہ وہ ہمارے درمیان رہے اور ہم سے رفاقت رکھے اور ہماری باتیں سنے اور ہم سے محبت کرے اور پیار کرے اور ہم بھی اس کے پاس جائیں، کیونکہ وہ انسان بن کے آ گیا. اور دوسری بات کیا ہے؟ جس طرح میں کہتا زیادہ باتیں نہیں بتاتا، دوسری بات جسم میں ظاہر ہونے کی یہ ضرورت تھی تاکہ خداوند یسوع مسیح انسان کا عوضی بنے. انسان نے گناہ کیا اور لکھا ہے جو جان گناہ کرے گی وہ، اور پھر یہ بھی لکھا ہے گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے، اور سزا اس پر آ گئی، آدم پر، انسان پر، انسانی نسل پر. لیکن اب عوضی کیسے بن سکتا ہے؟ اب سادہ طریقے سے بتاتا ہوں کہ انسان نے گناہ کیا ہے، اوکے، تو اس کی جگہ اگر برا یعنی جو اینیمل ہے، جانور، وہ ذبح کیا جائے، اس کا عوضی بن سکتا ہے؟ نو 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 نو. اس لیے بائبل مقدس میں عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ تو نے نظروں کو اور قربانیوں کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک جسم تیار کیا تاکہ وہ انسان کا عوضی بن جائے. انسان جو گنہگار ہے اس کی جگہ پر آ کے خود سزا کو اپنے اوپر لے کے ہمارا عوضی بن کے ہمیں آزاد کروا دے. حالانکہ
वो कुर्बानियाँ खुदा के हुक्म के मुताबिक गुजरानी जाती थी, लेकिन खुदा ने सिर्फ सिखाया शरीयत में कि किस तरह जो बरा है उसके लहू से नजात मिलती है, ताकि लोग समझ आएं और समझ करके खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए। और जब यीशु मसीह आ गया तो यूहन्ना अस्तबागी ने क्या किया, कहा, अभी एक बच्ची ने एक आयत भी यहाँ पढ़ी है, पता नहीं किसने, कि उसने क्या कहा, देखो ये खुदा का क्या है, बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाते हैं। इसलिए बड़ी जरूरत थी, अगर खुदावंद यीशु मसीह इंसानी जामा ना पहनता तो हमारा कफारा नहीं हो सकता था। और आप बड़े मुबारक हो, आप बड़े खुशकिस्मत हो कि खुदावंद यीशु मसीह जिस पर हमारा ईमान है, और वो खुदा का कलमा है, अजली भी है और अबदी भी है, और उसने इंसानी जामा पहन लिया और हमारा कफारा दे दिया, हमें गुनाहों से आज़ाद कर दिया और हमें शादमानी से मामूर कर दिया, और आज हम खुदावंद के बेटे और बेटियां बन गए। हालेलुया, आज हम उसके फर्जंद हैं और बड़ी दिलेरी से, बड़ी खुशी से जश्न मनाते हैं, इबादत करते हैं, प्रस्तश करते हैं, दुआएं करते हैं और उसकी हजूरी में दिलेरी के साथ आते हैं। अब हमें कोई डर और खौफ नहीं खुदावंद के पास आने के लिए, उसके फजल के तख्त के सामने आने के लिए हमें किसी तरह का कोई खौफ नहीं है, हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है और वो हम पर क्या है, खुश हुआ है, और हम उस पर क्या है, खुश हुए हैं, और हमें दिलेरी है उसकी बारगाह में जब चाहें, क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा हुआ है कि वो अपना कलाम नाजिल फरमा के क्या करता है, शिफा देता है। हालेलुया। और आज भी खुदा का कलमा, खुदावंद यीशु मसीह, जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमें बीमारियों से भी क्या करता है, रिहाई देता है। हालेलुया। और हमारी ज़रूरतों को क्या करता है, पूरा करता है खुदा का कलमा। हालेलुया। उसमें कुदरत है। उसने शुरू में देखें क्या कहा, हो जा, ये क्या है, कलाम है, बोला हो जा और वो हो गया। और आज भी जब हम उसके पास आते हैं, ये बरकत चाहिए, वो मौजज़ा चाहिए, शिफा चाहिए, ये नेमत चाहिए, तो हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह हम पर कलाम नाज़िल फरमा के कहता है हो जा। हालेलुया। और उसी वक्त हो जाता है और खुदा हमें बरकतों से क्या करता है, माला माल करता है। आज भी उसी कलमा के वसीला से हम भी कायम हैं, कायनात भी कायम है, और वो हमें अपनी बरकतों से क्या करता है, माला माल करता है। हालेलुया। सो आइए हम इस अजली और अबदी जो कलाम है इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं, जो हमारे लिए मुजस्सम हुआ है, जिस्म इख्तियार किया है, था वो पहले ही, ये याद रखें। फिर ये भी बता देता हूं जल्दी से, जिस तरह मैं कहता हूं कि ज़्यादा त्यौहार पर मैं वक्त नहीं लेता, कि जो खुदा का बेटा है वो जिस्म इख्तियार करने की वजह से, ये ज़हन में रख लें, नक्श कर लें, खुदावंद यीशु मसीह जिस्म इख्तियार करने की वजह से खुदा का बेटा नहीं हुआ, वो असली खुदा का बेटा है। हालेलुया। और वो अबदी कलाम है, वो पहले ही खुदा के साथ था, सिर्फ हमारी खातिर उसने क्या किया है, जिस्म लिए। ये याद रखें, वो बेटा इसलिए नहीं कि वो मुकद्सा कुमारी मरियम से पैदा हो गया और हम कहें बेटा, नो नो नो, वो हमें निजात देने के लिए मुकद्सा मरियम के बतन से पैदा हुआ है। हालेलुया। लेकिन बेटा वो असली भी है और अबदी भी है, और कलाम वो असली भी है और अबदी है। इसलिए हम ईमान रखते हैं कि वो खुदा का इकलौता बेटा है, और उसका जन्म लेना हमारी नजात के लिए बहुत ही क्या था, ज़रूरी था। अगर वो जन्म ना लेता मुकद्सा मरियम के बदन से,
तो हम कभी भी निजात ना पाते। इसलिए हम जश्न मनाते हैं, इसलिए पूरी दुनिया उसकी मुबारक विलादत के क्या मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, केक काटते हैं। अभी हम केक भी काटेंगे और इंजॉय भी करेंगे और भी कुछ देखते हैं कि इंतज़ाम क्या है। लेकिन ये सारा जश्न खुदावंद यीशु मसीह की मुबारक विलादत के सिलसिले में है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, आप बड़े मुबारक लोग हो। हालेलुया। आपको मैं मुबारक देता हूँ कि आप खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का कलमा है उसके पैरोकार हो। हालेलुया। और इससे पेशतर कि मैं आप सबके लिए दुआ करूं, मैं ये कहूँगा कि आज हमने खुदा की बंदी को बतौर डीकनस इंतजामिया के तौर पर, हम डीकन कहते हैं यानी मेल के लिए, और बहनों के लिए खातून को हम कहते हैं डीकनस। ये बाइबल मुकद्दस में है मुंतजिम, इंतज़ामिया। ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। जहाँ लिखा हुआ है कि मुबशर, पास्टर और लिस्ट है, नबी भी, रसूल भी, वहाँ लिखा है, लफ्ज़ गौर कर ले, मुंतजिम। मुंतजिम का क्या मतलब है? इंतज़ाम करने वाला। और जो मुंतजिम है, इंतज़ाम करने वाले हैं, वो किन की लिस्ट में है? जितनी खिदमतें हैं तरह तरह की, उस लिस्ट में ये लिखा हुआ है कि मुंतज़म। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम जो इंतज़ाम करने वाले हैं हमारी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आज मैं आपको खुदा के कलाम से सिखाऊंगा कि उतनी ही वैल्यू खादम की है, उतनी ही वैल्यू मुबशर की है, उतनी ही वैल्यू उसकी है जो इंतज़ाम करता है, भागता है और सेटिंग करता है और लोगों को बिठाता है और चर्च का इंतज़ाम करता है और मीटिंग्स का इंतज़ाम करता है। उसकी भी वैल्यू उसी तरह है, क्योंकि चुनने वाला कौन है? खुदावन यीशु मसीह चुनता है। और जो चर्च की सफाई करता है उसकी भी वैल्यू उतनी है, बल्कि मैं तो कहता हूँ बल्कि बढ़कर है। तो जो चर्च की सफाई पूरा साल की, आइंदा मुझे किसी बहन ने कहा हुआ कि मैंने जनवरी से शुरू करनी है। ओके, तो ये दाऊद ने और दाऊद शाहीन ने और उजाला दाऊद ने पूरा साल बड़ी अच्छी सफाई की है। सामने आए दोनों सामने आ जाए, दोनों आगे आ जाए। इनके लिए मुआदर करें, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। इन्होंने सर्दी में, और मुझे याद है कि उजाला के जब कभी उसकी तबीयत भी नहीं ठीक थी तो मैं कहता था ना आओ, तो ये कहती थी मैंने आना ही आना है, मैंने सफाई करनी है। मैं कह देता था ना आओ, तो कहती थी नहीं मैंने आना है। तो जब हम उसकी तरह तरह की खिदमत करते हैं तो बरकत उतनी ही है। फिर जताता हूँ वैल्यू उतनी ही है, क्योंकि खुदा ने ये सारी खिदमतें तरह तरह की दी है। अभी और हमारी सिस्टर यूके से आई है, उसने वो गवाही देती है मैं चर्च की सफाई कर कर के बाहर निकल गया। तो ये बड़ी बरकत की बात है। मेरी बेटी भी सलोमी है, उसने भी चर्च की खिदमत की है, सफाई की है। तो ये बड़ा एजाज है। हालेलुया। इंतजाम करना, चर्च को सजाना और चर्च की यानी उसे साफ सुथरा रखना, मैं कहता हूँ इसका अजर तो बहुत बड़ा है। हालेलुया। और हम आज एक इंतजामिया हमारी बहन है, डीकनस हम इसे कहते हैं थियोलॉजी में, तो आज हम उसे बतौर डीकनस खुदा की हजूरी में मसा करेंगे और मखसूस करेंगे, और ये बहुत बड़ी खिदमत है। मैं आपको एक मिसाल दे दूं ताकि याद रहे कि स्टीफनस जो पहला कलीसिया का शहीद था,
उसके पास कौन सी खिदमत थी? आज आप कहेंगे हाँ, वाह वाह। कलीसिया का पहला शेख स्टीफनस वो डीकन था, और पूरी लिस्ट है अमाल की किताब में जो डीकन थे, और वो रूह कुछ से मामूर और इंतज़ामी तौर पर खुदा की खिदमत करते थे। और खादमों ने कहा कि हम कलाम और दुआ की खिदमत करते हैं, और कुछ इंतज़ामिया चुने और उन्हें मखसूस किया गया, मसा किया गया। और स्टीफनस की कितनी बड़ी गवाही है, या पहले नहीं पता तो आज आपको पता चला होगा। कलीसिया का पहला शहीद स्टीफनस था। ये कोई छोटी खिदमत नहीं। कभी कभी हम कहते हैं ये सानू कुर्सियां सीधियां कर दे ला देते, सानू जी लोग बैठाते ला देते। मैं कहता हूं आपकी बहुत ज्यादा खुदा की निगाह में क्या है? वैल्यू है। आपकी खुदा कदर करता है। जो कुछ भी आप खुदा के लिए करते हैं, उसकी बादशाहत के लिए करते हैं, छोटी खिदमत बड़ी खिदमत, जो कुछ भी उसकी हजूरी में लाते हैं, खुदा उस पर खुश होता है। हालेलुया, और कदर करता है। आइए अपने सरों को झुका लें और इस मुबारक दिन पर जो भी चाहते हैं बरकत हासिल करना आपके दिल में है, खुदा की हजूरी में हाथ उठा के खुदा को बताएं कि ऐ खुदावंद, मेरी ये ज़रूरत है, मेरी ये दरख्वास्त है, मेरी ये मुराद है, लेकिन मेरा ईमान है खुदा मौजूद है, आपका भी ईमान है खुदा मौजूद है, और वो दुआओं को सुनता है। हालेलुया, और जवाब देता है। अपने हाथों को नीचे कर लें। खुदा ने आपका हाथ, दिल, दरख्वास्त को देखा है। आसमानी बाप, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज इस मुबारक दिन के लिए। तूने हम सब को सेहत और सलामती बख्शी, और फिर ये दिन जो है ये इसमें खुशियाँ मनाने का, इबादत करने का, परस्तिश करने का फजल भी बख्शा है। अब ऐ खुदा मैं दुआ मांगता हूँ इस हदिये के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे दिए में से तुझे वापस लौटा करके मोहब्बत का इजहार किया है, इसके इवज़ आसमान खोल के इनको बरकत दे। और जिन्होंने तेरी बारगाह में ये खुदावंद केक पेश किया है और फूल सजाए हैं और चाय का इंतज़ाम किया है, और जो भी कंट्रीब्यूशन की है माली तौर पर भी, खाने पीने की चीज़ों के ज़रिया से भी, ऐ खुदावंद इनको भी आसमान खोल के अपनी बरकतों से माला माल कर। मैं ये भी दुआ करता हूँ जिन तेरे बेटों बेटियों ने अपने हाथ तेरी तरफ बुलंद किए हैं, मैं तेरा खादिम होता हुआ यीशु मसीह नासरी के पाक मुबारक जलाली नाम के वसीला से दुआ मांगता हूँ, इनके दिल की मुरादों को पूरा कर। जो कुछ इन्होंने तेरी हजूरी में दिल में रखा है, मांगा है, अपने पाक बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से इनकी हर तरह की ज़रूरत को पूरा कर। इनकी मुराद इन्हें अता फरमा, इनका मौजज़ा इन्हें अता फरमा। इन ख़ानदानों पर तेरी सलामती हो, ये ख़ानदान सरफराज होते चले जाएं। इनकी औलाद पर तेरी बरकत हो, इनकी जॉब पर तेरी बरकत हो, इनके बिज़नेस पर तेरी बरकत हो, इनके प्लान्स पर तेरी बरकत हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में दुआ करता हूँ अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। इस मुल्क में तेरी सलामती हो, तेरी बरकत हो, तेरा फजल हो। ऐ खुदावंद, मेरा ईमान है जो कुछ हमने मांगा तूने आज भी पहले की तरह हमारी दुआ को सुन लिया। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन।
हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेके हमेशा हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया के कुल मुकद्दसीन लोगों के साथ होती रहे। आमीन। आमीन।